Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we started with that ancient architecture monuments. In that we studied secular architecture monument, religious monument, Buddhist stupas, Chaitanya Viharas. Then we studied Hindu temple. Then we studied the sculptures and painting. In sculptures and painting, we started with sculptures, painting, archaeological remains. In that we studied pottery, beads, funeral remains, bones, floral remains, foundation of architecture, domestic material, occupational material, the charcoal. Now, today we are going to start with the new topic, that is literacy source. The literacy written source to reconstruct ancient Indian history can be classified among three main categories. See, अपना जो written source है about that ancient Indian history, it can be classified in three main categories, that is religious, secular and scientific. See, as we have seen in the table, जो लिखा हुआ source है, जो written source है, it is categorized in three main parts, that is the religion, secular and scientific. It also comprised of some different kind of source like Sangam, literature and travelogies of foreign travelogy of foreign travelers. See, what happened here is it also comprised of some different kind of sources like एक और है, that is the Sangam literature and travelogies of foreign travelers. Now we will study the first, religion. See, अपन ने वो टेबल में देखा था, जैसे रिलीजियस बोला, रिलीजियस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज द वैदिक लिटरेचर, दैट इज द वैदिक, देन वी स्टडी द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. In this, today we are going to study about the religion sources, then we'll study the Vedic, that is the हिंदू लिटरेचर वगैरह बोला है. फिर वैदिक में अलग अलग वेदास, ऋग्वेदास, यजुर्वेदास, समवेदास, अथर्ववेदास, ये सारा पढ़ेंगे आज. देन फिर उसमें सेकेंड पार्ट है ब्रह्मासना, वेदास के टाइप्स पढ़ेंगे. देन ब्रह्मासा, आरण्यकास, उपनिषद, वेदांगास, शिखास, ये सारा अपन पढ़ेंगे. सो रिलीजन सोर्सेस. रिलीजन वॉज द बैकबोन ऑफ सोसाइटी ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड. सी, आज जितना इम्पोर्टेंट रिलीजन है ना, रिलीजन पहले भी लोगों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट था. सो रिलीजन वॉज द बैकबोन ऑफ सोसाइटी ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड. इंडिया वॉज नॉट एन एक्सेप्शन. सो इंडिया कोई एक्सेप्शन नहीं था. सो इंडिया वॉज नॉट एन एक्सेप्शन. हेंस वी फाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ religious literature of various religion prevalent in ancient India. See, इसलिए क्या देखते हैं अपन, hence we find large amount of religious literature of various region. See, इसलिए अपन देखते हैं कि अपने यहाँ पे कितने सारे रिलीजन है, हर रिलीजन में अलग अलग लिटरेचर लिखा हुआ है जो एंशेंट इंडिया में पहले भी था. दिस थ्रो लाइट ऑन द along with religious, socio-economic aspect and political thought and ideology of the period under study. See, through अगर अपन अच्छे से ध्यान दें तो अपने को क्या दिखेंगे, along with अगर अपन अच्छे से ध्यान दें तो अपने को क्या पता चलेगा, रिलीजन, सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट एंड पॉलिटिकल थॉट्स एंड आइडियोलॉजी ऑफ द पीरियड. अपन इन सब का स्टडी, इन सब के डीप में नॉलेज अपने को मिल सकता है. However, such source should be used with caution. But ये जो भी सोर्स अपने को, जिसे भी सोर्स से अपने को मिलेगा, जो भी सोर्स है, we should use it very carefully. Because first of all, most of the religion sources are written through oral traditions and put into written hundreds of years after their actual creation. See, अपने को एक तो क्या है, जो रिलीजन सोर्स है, जो अपन ने आज भी जप के रखा है, आज भी इवन टुडे वी फॉलो सर्टन रिलीजन, सर्टन कस्टम, इवन टुडे वी फॉलो. जो भी था पहले ये ओरली था. इट वॉज कि बहुत कुछ ऐसे रिटर्न फॉर्म में नहीं था, एवरीथिंग वॉज इन द ओरल फॉर्म. फिर क्या हुआ, हिस्टोरियन ने क्या किया, जो भी ये आइडियाज़ जो भी है, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, दे केम अप इन द रिटर्न फॉर्म. और ये सारा कब हुआ, इट वॉज अलॉन्ग 100 of years एक्चुअली. डिसाइड वॉट वी हैव नाउ आर द एडिशन ऑफ एक्चुअल राइटिंग. सी, डिसाइड क्या है, आज अपने पास क्या है, वो क्या है, थोड़ा सा एडिट किया हुआ राइटिंग है, लेकिन थोड़ा सा
एडिट किया हुआ, कुछ प्लस माइनस हुआ है, एग्जैक्टली जैसे पहले था वैसा ही सेम टू सेम लिखा हुआ नहीं है अपने पास रिलीजन के बारे में। उसमें कुछ प्लस कम ज़्यादा जैसा जिसका सोच था वैसा उसने डाला, एंड आज भी अपन वही फॉलो कर रहे हैं। सेकेंडली, रिलीजन लिटरेचर्स वेर मेनली रिटन टू प्रोवाइड गाइडलाइंस विथ एन आइडियलिस्टिक अप्रोच। सेकेंडली क्या है, रिलीजियस लिटरेचर। जो रिलीजियस लिटरेचर क्या है, दे वेर रिटन ऑन, वो प्रॉपर एक गाइडलाइंस थे अपने लिए। जो लिखा हुआ रिलीजन लिटरेचर है ना, इट एक्टेड एज अ गाइडलाइंस विथ द आइडियलिस्टिक अप्रोच, विथ सर्टन आइडियाज़ के, एक सर्टन आइडियाज़ थी, उसी आइडियाज़ के बेस पे वी डिड एवरीथिंग हियर। हेंस whatever written is there is do and don't kind of nature and not as actual। तो जो भी लिखा हुआ है उसके अपने, उसमें अपने को क्या है, अपन क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है। Sometime the body of work like Purans through written in 4th century AD onwards, written as if they were created 1000 years before। See, sometime body of work like पुराण जो भी लिखे हुए हैं, राइट, वो क्या है, वो 4th सेंचुरी में लिखे हुए, बट अपन क्या बोलते हैं, हज़ारों साल लिखा हुआ है पुराण में, ये हज़ारों सालों से ऐसे ही चल रहा है, एंड प्रोफेसिंग समथिंग अबाउट 1000 years after। Hence, with tools like internal and external criticism, a historian can make use of these sources and reconstruct the history of ancient India। See, hence with tools like, अभी जो अपने पास इंटरनल एक्सटर्नल क्राइसिस है, हिस्टोरिक, अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन अगेन रिकन्स्ट्रक्ट हिस्ट्री ऑफ दैट एंशंट इंडिया। अपन फिर से उसमें कुछ ना कुछ तो नया डाल सकते हैं ताकि अपने को पता चले। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द वैदिक हिंदू कैनोनिकल लिटरेचर। इट कंप्राइज्ड ऑफ सोर्स लाइक 4 वेदास। अपन ने 4 वेदास के बारे में 11th या 12th में पढ़ा है, राइट। 4 वेदास कौन से हैं, ब्रह्मणास, आर्यनकास, उपनिषद, षड्दर्शनास, षड अंगास, सूत्रास, स्मृतिस एंड पुराणास। उसमें 4 वेदास भी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। सी, सबसे पहले वेदास। द आर्यन हैव क्रिएटेड 4 वेदास। नाउ हु क्रिएटेड दिस वेदास, अपन वेदास की बात वगैरह करते हैं तो सबसे पहले सवाल आता है ये वेदास है क्या, एंड हु हैड क्रिएटेड दिस वेदास, राइट। सी, द आर्यंस दे हैव क्रिएटेड दिस वेदास, राइट, एंड देयर आर 4 मेन वेदास, दैट इज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्व वेदा। द वेदास फ्रॉम वेद टू नोन, मतलब ये वेदास क्या है, राइट फ्रॉम बॉर्न टू डेथ, दिस वेदास ये है। वेर बेसिकली कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेयर्स ऑफ आर्यंस फॉर द गॉडेस विच वेर मेनली द पावर्स इन नेचर। से ये वेदास क्या है, ये एक पावर इन नेचर है। अकॉर्डिंग टू आर्यंस द वेदास वेर हेल्ड एंड नॉट क्रिएटेड बाय मैन। से आर्यंस क्या बोलते हैं, वेदास हमने नहीं बनाए हैं, इंसान ने नहीं बनाए हैं, इट इज़ क्रिएटेड बाय गॉड। दिस वेदास वी हैव नॉट, अपन ने वेदास, इंसान ने वेदास नहीं बनाए हैं, वेदास ये भगवान ने बनाए हैं, ऐसे आर्यंस का मानना है। आई डोंट नो कितना सच है कितना झूठ है, बट उस वक्त वो ऐसे बोला जाता था। हेंस देयर वेर कॉल्ड सृष्टिस एंड अपरुषयास, नॉट क्रिएटेड बाय एनी मैन। इसलिए उनको क्या बोलते हैं, ये वेदास को एक और नाम बोल रहे हैं सृष्टि। सृष्टि मतलब ये नेचर ने बनाया है, राइट, और नेचर किसने बनाया है, गॉड ने बनाया है। सो दिस ये वेदास दे आर इवन कॉल्ड एज द सृष्टिस एंड अपरुषया, नॉट क्रिएटेड बाय मैन, और मैन ने नहीं बनाया है। द वेदास आर ऑल्सो कॉल्ड एज संहिता। अब वेदास को क्या बोला है, वेदास का एक और नाम है संहिता। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ अब ये 4 वेदास के बारे में आज अपन पढ़ेंगे, दैट इज द ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द अर्लीस्ट अमॉन्ग 4 वेद। सी, जब भी वेदास का बात आता है अपन सबसे पहले ऋग्वेद ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं,
क्योंकि चारों वेदा में सबसे पहले ऋग्वेदी आया था. सो ऋग्वेदा इज द अर्लीस्ट अमॉन्ग 4 वेदास. इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 10 मंडलास एंड 128 सुक्तास से. अब ये जो ऋग्वेदा की अपन बात कर रहे हैं, द ऋग्वेदा इट कंप्राइज ऑफ 10 मंडलास. 10 मंडलास थे एंड 1028 suktas. These were prayer to the gods like Indra, Varuna, Agni, Prajaya, Vayu and Marut etc. अब ये जो ऋग्वेद है ये एक भगवान के लिए एक प्रेयर है. ये प्रेयर अपन कौन से भगवान को कर रहे हैं? इंद्र भगवान मतलब बारिश, अग्नि यानी आग, वरुणा मतलब हवा, प्रजानया, मरुत एक्सेट्रा. मतलब अपन इन सब भगवान को प्रे कर रहे हैं. इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोशो इकोनॉमिक, रिलीजन एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ अर्ली आर्यंस. सी, ये अपने को इन्फॉर्मेशन किसके बारे में देता है? इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोशो इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ अर्ली आर्यंस लोकेटेड इन द एरिया ऑफ सप्त सिंधु. अभी कौन से आर्यंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ये? इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशो इकोनॉमिक, रिलीजन, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द आर्यंस. कौन से आर्यंस? दोज आर्यन पीपल हु लिव्ड नियर द सप्त सिंधु रिवर. ये सप्त सिंधु रिवर के नाम है. तो वो रिवर के आजू बाजू उनको जो रहते थे आर्यंस, उनको सप्त सिंधु बोलते हैं. तो वो जो आर्यंस रहते थे उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में ये इधर पता चलता है वेदास में. फॉर एग्जाम्पल द पुरुष सुक्ता ऑफ इट्स 10th मंडला एडिक्ट द ओरिजिन ऑफ वर्ना सिस्टम इन इंडिया. सी, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है. एग्जाम्पल दे सेड अबाउट द पुरुष सुक्तास ऑफ द इट्स 10th मंडला. मतलब कितने 10 मंडला है, उस 10 मंडला एक 10th एडिशन में 10th मंडलास में उन्होंने पुरुष सुक्तास के बारे में बोल रहे हैं. इसके अंदर उन्होंने वर्ना सिस्टम इन इंडिया बोला है. वर्ना सिस्टम इन इंडिया पहले कैसा था? पहले बच्चा जन्म लेते ही वो पहले आश्रम में थोड़े कुछ साल के बाद उसको आश्रम में जाना है. आश्रम में जाके यूज टू गेट एडुकेटेड एंड ऑल. फिर वो सांसारिक जीवन जिएगा, मतलब ही विल गेट मैरिड, ही विल हैव हिट्स किड एंड ऑल, राइट. फिर वो गृहस्थ की जिम्मेदारी उठाएगा, माँ बाप की जिम्मेदारी उठाएगा. फिर उसके बाद क्या स्टेज आती है? यू शुड गो टू द जंगल, मतलब वो सन्यासी जीवन जीने का. पहले वर्ना सिस्टम ऐसा था अपना. नाउ सेकेंड वन इज द यजुर्वेदा. इट कंप्राइज द प्रेयर टू बी डिक्टेटेड व्हाइल परफॉर्मिंग सैक्रिफाइस और यजनास. ये कब बोलते थे अपन यजुर्वेदा? अपन ये क्या था? ये प्रेयर था जब अपन कोई सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं. जैसे पहले कुछ भी हो तो बलि चढ़ाई जाती थी. कभी गोट की बलि चढ़ती थी, किधर गाय की बलि चढ़ती थी. हैव यू सीन दैट बाहुबली मूवी? बाहुबली में वो युद्ध प्रारंभ करने से पहले क्या करते थे? वो लोगों ने गाय की बलि चढ़ा रही थी, राइट. तो ये क्या था? उस वक्त ये सैक्रिफाइस करते थे. ये सारे सैक्रिफाइस रहते थे. जब ये सैक्रिफाइस करना रहता था तब का ये प्रेयर है. यजुर्वेद तब ये प्रेयर करते थे. एक्चुअली द मेजर पार्ट ऑफ द प्रेयर आर बोरोड फ्रॉम द ऋग्वेदा इटसेल्फ. एक्चुअली क्या है? जो प्रेयर का मेजर पार्ट है ये कहाँ से आया है? इट केम फ्रॉम द ऋग्वेदा इटसेल्फ. इट हैज़ 2 पार्ट्स. अभी इसमें भी यजुर्वेदा के 2 पार्ट्स हैं. एक तो शुक्ला एंड कृष्ण एंड 6 अदर संहितास. सी, शुक्ला एंड कृष्णा एंड 6 अदर संहितास. The Vajasanyas Samhita of Yajurveda throws ample light on various Vedic sacrifice. See, जो वजसनीय संहिता जो है वो यजुर्वेदा के जो सैक्रिफाइस रहते हैं, वैदिक सैक्रिफाइस है, उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसके ऊपर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. दे आर स्पीकिंग अबाउट दैट. सी, ऋग्वेदा कब है? ऋग्वेदा ये अपन जब अपन प्रेयर करते हैं, इंद्र, वरुणा, अग्नि, इनको प्रेयर करते हैं तब भी यूज़ ऋग्वेदा. यजुर्वेदा कब यूज़ करते हैं? ये प्रेयर है जब अपने को कोई सैक्रिफाइस करना रहता है, जब अपने को while we are performing certain sacrifice we use this yajurveda prayers and all. Now moving towards the third veda, that is the samaveda.
It comprised the prayer to teach how to rect the prayer while performing sacrifice. अभी प्रेयर करना बोल रहे हो आप, हाँ, मैं बोलूँगी मुझे गणपति की वक्त पूजा करनी है। पूजा करने का मतलब पूजा करना बोलते हो गया क्या? नहीं, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो विधि रहती है ना, बहुत सारी विधि वगैरह रहती है, राइट। वो विधि के बारे में कौन बोल रहा है? समवेदा में वो सारी विधियाँ बोली गई है। लाइक आपको सैक्रिफाइस प्रेयर वाइल परफॉर्मिंग सैक्रिफाइस, अभी ये जो प्रेयर करते हैं अपन, जब सैक्रिफाइस करना रहता है तो वो किस हिसाब से करना है, हाउ दे शुड गो, किस तरह से क्या बोलना है, ये सब किस में पता चलेगा आपको? दिस ऑल विल कम टू नो थ्रू द समवेदा। अगेन इट कॉम्प्राइज द प्रेयर फ्रॉम ऋग्वेदा। और फिर इसके ये सारे प्रेयर कहाँ से आए हैं? दिस ऑल प्रेयर केम फ्रॉम द ऋग्वेदा एंड प्रोवाइडेड मेथड्स टू रेक्टेट देम, और बताते हैं कि वो कैसे करना चाहिए। हेंस इट इज़ कंसिडर्ड एज द ओरिजिन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। समवेदा को क्या बोला है? इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। अथर्ववेदा, it comprised assorted subject like magic, black magic, superstition, etc. See, अथर्ववेदा में क्या है? अथर्ववेदा में क्या आता है? मैजिक, मतलब पहले ज़माने में जादू टोना, मतलब कोई भी बोला तो फटाक से बिलीव करना, ये सब बहुत होता था। तो क्या है अथर्ववेदा में? क्या आता है? इट कंप्राइज्ड ऑफ सब्जेक्ट लाइक मैजिक, ब्लैक मैजिक, सुपरस्टिशन, एक्सेट्रा। We find origin of medicines, botany and surgery in this Veda. See, आज अपन बॉटनी एक सब्जेक्ट रहता है, सर्टन सर्जरीज वगैरह करते हैं, मेडिसिन, ये सब कहाँ से आए? दिस ऑल केम फ्रॉम द अथर्ववेदा। लाइक अपन ने जो घरगुती औषध आपण म्हणतो, हाँ, घरगुती नुस्खे सब बोलते हैं अपन, ये सब कहाँ से आए? इट ऑल केम फ्रॉम दिस ऋग्वेद, इट ऑल केम फ्रॉम दिस वेदा। The four Vedas throw light on life ways of Vedic Aryans. See, ये जो फोर वेदास है ये किस पे ध्यान देते हैं? दे मोस्टली थ्रो लाइट ऑन द, दे फोकस ऑन द लाइफ ऑफ द वैदिक आर्यन। मतलब जो खुद को आर्यन बोलता है, वैदिक आर्यन बोलता है, उसने ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। ये चार वेदास क्या है? इट टेल्स अबाउट द लाइक आम आदमी का जो वेदा है उसका जीवन कैसा रहेगा। We come to know that when the Aryans initially were settled in Sapta Sindhu region, their lifestyle was different. See, जो आर्यंस सप्त सिंधु रीजन के उधर सेटल्ड हुए थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था? their lifestyle was different. The second of 9th मंडला of ऋग्वेदा tells us about them. See, ये जो ऋग्वेदा में जो 9th मंडला है उसके अंदर ये जो आर्यन सप्त सिंधु रीजन के उधर आके सेटल हुए थे उनके बारे में बोला क्या है? ऋग्वेदा का 9th मंडला, in that they have said about the Aryans who settled near the Sapta Sindhu region. But when they migrated to more eastern part of their actual location and came into contact with other communities, we find drastic change in their life way. See, अपन ने पहले देखा था कि लोग एक जगह पे सेटल हो रहे हैं, कहाँ पे सेटल होते हैं? where they find the favorable condition, and when the condition go beyond their limit, when the conditions become unfavorable, they shift to some other place. तो ये आर्यंस जो सप्त सिंधु रीजन के उधर आए थे, आफ्टर सर्टन टाइम व्हाट हैपेंस? दे मूव टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट, और वो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उन्होंने देखा, दे केम इन कॉन्टैक्ट विद द अदर कम्युनिटीज़, और फिर उनका लाइफस्टाइल, अभी बाकी कम्युनिटीज़ को देखते देखते क्या हो गया? उनका लाइफस्टाइल भी कुछ हद तक चेंज होने लग गया। द फर्स्ट and the 10th mandala of Rig Veda and other 3 Vedas inform such changes. See, the first mandala and the 10th mandala of Rig Veda, उसके अंदर ये जो वेदास में जो चेंज आए हैं उन सब चेंजेस के बारे में बोला गया है। Hence, to understand Vedic Aryans, we have to think in 2 parts. अभी अगर आपको वैदिक आर्यंस को अच्छे से समझना है तो आपको वी हैव टू कंपेयर, अपने को 2 पार्ट में सोचना पड़ेगा। एक तो अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। सी, फर्स्ट वन इज द अर्ली वैदिक एंड सेकेंड द लेटर वैदिक। आफ्टर वेदास सम अदर इम्पॉर्टेंट वर्क वेर कंपाइल्ड बाय वैदिक आर्यंस। सी, वेदास के बाद क्या है? कुछ
some other important works. कुछ अलग काम वो भी आ गए थे वैदिक आर्यंस में. They were basically created to explain the thoughts and laws in the Vedas. अब why they came up, एक और वैदिक आर्यंस क्यों आए दूसरे, ताकि वो जो लॉज है, थॉट्स है, वेदास के जो लॉज है, थॉट्स है, उनके बारे में वो अच्छे से अपने को बोल सके, टू मेक देम मोर अंडरस्टैंडेबल, ताकि वो अपने को अच्छे से समझ में आए. वी कैन हैव द क्लियर आइडिया अबाउट दिस. हेंस दिस वर्क एज अपेंडिक्स ऑफ वेदास एंड वेर मोस्टली इन प्रोज. सी, ये जो वर्क ऑफ वेदास था ये क्या है, थोड़ा सा इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोज थे. प्रोज एंड कॉन्स मतलब अच्छा बुरा था, तो कुछ फ़ायदे भी थे और कुछ नुकसान भी थे. दिस वर कंप्राइज्ड ऑफ ब्रह्मासनास, आर्यकास, उपनिषद, वेदांगस एंड शतदर्शनास. अभी ये जो नया आया है, नया वेदास के बारे में जो अपन बात कर रहे हैं, जो नया है उसके अंदर सर्टन पार्ट्स थे. इट कंप्राइज्ड ऑफ ब्रह्मनास, आर्यकास, उपनिषद, वेदांगास एंड शद आश्रमास. अभी इन सब के बारे में विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. मीनवाइल, इफ यू हैव एनी डाउट, mail me on my mail id. My mail id is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.